You are a conscious creator of your life if you're aware of your limiting beliefs. I don't think people understand just how much the story we tell ourselves shapes our reality. My client Sajal approached me with a big dream. She wanted to start her own business. It was a beautiful idea. She wanted to create something special, something that could help people. But there was a small voice in her mind, whispering again and again. It kept saying, "You can't do this." That voice was full of doubt. It made her feel small. It scared her. She believed that voice. So, her big dream stayed just a dream. She felt stuck and didn't know how to move forward. Her energy was low, and her days felt heavy without progress. This is a story many of us know. We all have dreams. We all have goals we want to achieve. But sometimes, there are beliefs that hold us back. These are called limiting beliefs. They're like invisible walls. We can't see them, but we can feel them. They stop us from trying new things. They stop us from becoming our best selves. Sajal's belief that she wasn't good enough wasn't a fact. It was just a story she told herself so many times, it started to feel true. That story was built from old memories. Maybe a time she failed, or when someone doubted her. Our beliefs shape our world. They're like glasses we see everything through. If you believe you're not smart, you won't try hard in new learning situations. You'll see every challenge as proof you can't do it. If you believe you're not lovable, you'll push people away. You'll miss the love around you. Sajal's belief made her focus on all the reasons her business could fail. She saw obstacles everywhere. She didn't see the opportunities. Her thoughts created feelings of fear, and her fear controlled her actions, or her inaction. But here's a wonderful truth. We can change our beliefs. We are the authors of our stories. We can choose to write a new story. It starts with understanding that a belief is just a thought. It's a thought we've practiced over and over. It's not permanent. It's not who we are. It's just a pattern in our mind. We have the power to create a new pattern, a pattern of empowerment, confidence, and success. We can teach our mind to think in new ways, just like we can teach our body a new dance. Ms. Vijaya emphasizes that we need not be stuck in those invisible boundaries. With awareness and some mindful tools and techniques, we can rewrite those limitations and step into a new story. अपने दिमाग की उस नेगेटिव आवाज के बारे में सोचो। वह विचार जो कहता है, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। तुम्हारे दिमाग में ये कैसा दिखता है? क्या ये एक बड़ी, डार्क पिक्चर है? क्या ये बहुत लाउड और गूंजने वाला है? शायद ये तुम्हारी फेल होने की एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है। माया के लिए, उसके फेल होते बिजनेस का विचार उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा, डार्क पोस्टर था। तुम फेल हो जाओगी, ये शब्द बड़े, लाल, गुस्से वाले अक्षरों में थे। तस्वीर उसके चेहरे के इतने करीब थी कि उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। इस तरह हमारा दिमाग एक विचार को शक्ति देता है। यह इसे बड़ा, लाउड और रंगीन बनाता है। हमारे विचारों की इन क्वालिटीज को सबमोडेलिटीज कहते हैं। यह एक बड़ा शब्द लगता है, लेकिन यह सिंपल है। यह हमारी सोच का तरीका है। यह वह नहीं है जो तुम सोचते हो, बल्कि यह कि तुम उसे कैसे सोचते हो। क्या इमेज ब्राइट है या डिम? क्या यह मूव कर रही है या स्थिर है? क्या आवाज लाउड है या शांत? क्या यह किसी खास दिशा से आ रही है? ये छोटे डिटेल्स हमारी फीलिंग्स के लिए कंट्रोल हैं। जब हमारे पास एक नेगेटिव विचार होता है, तो हमारा दिमाग अक्सर वॉल्यूम बढ़ा देता है और पिक्चर को बड़ा और डरावना बना देता है। इसीलिए एक छोटी सी चिंता भी एक विशाल मॉन्स्टर जैसी लग सकती है। ये सब हमारे दिमाग में प्रेजेंटेशन के बारे में है। अच्छी खबर ये है कि हम इन कंट्रोल्स के साथ खेल सकते हैं। हम अपनी खुद की मेंटल मूवीज के डायरेक्टर हैं। हम एक विचार की सब मोडेलिटीज को बदल सकते हैं। तुम उस बड़ी डरावनी तस्वीर को छोटा कर सकते हो। तुम उस लाउड क्रिटिकल आवाज का वॉल्यूम कम कर सकते हो। तुम इमेज को इतनी दूर धकेल सकते हो जब तक कि वह सिर्फ एक छोटा सा डॉट न बन जाए। जब तुम एक विचार के दिखने और सुनाई देने का तरीका बदलते हो, तो तुम यह भी बदल देते हो कि वह कैसा महसूस होता है। तुम उसकी शक्ति छीन लेते हो।
यह एक डरावने मॉन्स्टर को एक छोटे चीखने वाले कार्टून कैरेक्टर में बदलने जैसा है। ऐसी चीज से डरना मुश्किल है जो अजीब दिखती और सुनाई देती है। यह अपने दिमाग पर कंट्रोल पाने का पहला स्टेप है। यह अपने विचारों का ऑब्जर्वर बनने के बारे में है। उन्हें बस अपने आप होने मत दो। उन्हें देखो, उन्हें सुनो, उनकी क्वालिटीज पर ध्यान दो। तुम डर या डाउट की इस फीलिंग को कैसे बना रहे हो? तुम्हारा दिमाग कौन सी रेसिपी इस्तेमाल कर रहा है? जब तुम रेसिपी समझ जाते हो तो तुम इंग्रेडिएंट्स बदल सकते हो। तुम आदतों को हावी होने देने के बजाय अपने विचारों को कॉन्शियसली डिजाइन करना शुरू कर सकते हो। यह तुम्हारे विचारों से लड़ने के बारे में नहीं है। यह उनके साथ खेलने और उन्हें कुछ ऐसा बनाने के बारे में है जो तुम्हारे लिए बेहतर काम करे। आइए एक बिलीफ को बदलने के लिए एक आसान टेक्निक को समझें। हम माया की कहानी को अपना गाइड बनाएंगे। सबसे पहले अपनी किसी लिमिटिंग बिलीफ के बारे में सोचें। कोई ऐसी बात जो आप खुद से कहते हैं और जो आपको रोकती है। माया के लिए यह था, मैं एक सफल बिजनेस शुरू करने के लायक नहीं हूं। अपनी आंखें बंद करें और उस विचार के साथ आने वाली इमेज को देखें। उसकी सब मोडालिटीज पर ध्यान दें। माया ने देखा कि वह बड़ा काला पोस्टर गुस्से वाले लाल अक्षरों के साथ, वह ठीक उसके चेहरे के सामने था। आवाज एक तेज गूंजती हुई शक्यू की आवाज थी। उसे अपनी छाती में भारी और ठंडा महसूस हुआ। अब इसे बदलें। उस मेंटल इमेज को लें और उसे छोटा करें। कल्पना करें कि आपके दिमाग के लिए आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है। श्रिंक बटन दबाएं। पोस्टर को छोटा और छोटा होते देखें जब तक कि वह एक पोस्टेज स्टैंप के साइज का न हो जाए। अब उसमें से रंग निकाल दें। उसे एक धुंधली ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बना दें। उसे अपने से बहुत दूर धकेल दें, इतनी दूर कि आप उसे मुश्किल से देख पाएं। उस गूंजती हुई आवाज का वॉल्यूम इतना कम कर दें कि वह एक छोटी सी पतली फुसफुसाहट बन जाए। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, ध्यान दें कि आपकी छाती में कैसा महसूस होने लगता है। भारीपन कम होने लगता है। अगला स्टेप, एक नया एम्पावरिंग बिलीफ बनाना है। आपकी लिमिटिंग बिलीफ का उल्टा क्या है? माया के लिए यह था, मैं एक सफल बिजनेस बनाने के लिए पूरी तरह से काबिल और योग्य हूं। अब इस नई बिलीफ के लिए एक पावरफुल मेंटल इमेज बनाएं। इसे बड़ा, चमकीला और रंगों से भरा बनाएं। खुद को सफल होते देखें। अपने बिजनेस को फलते फूलते देखें। अपने ग्राहकों के खुश चेहरे देखें। इस खूबसूरत तस्वीर को अपने करीब लाएं। इसे एक पूरी पैनोरामिक मूवी बनाएं। सफलता की आवाजों का वॉल्यूम बढ़ाएं। खुशगवार बातचीत, तारीफ के शब्द, गर्व का एहसास। इस अदला बदली का अभ्यास करें। पुरानी, छोटी, धुंधली नेगेटिव इमेज को जल्दी से सामने लाएं। फिर शक्तिशाली और तुरंत उसे नई, बड़ी, चमकीली पॉजिटिव इमेज से बदल दें। इसे बार बार करें। वूश, पुरानी इमेज चली गई। बूम, नई पावरफुल इमेज आपके दिमाग को भर देती है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिमाग में एक नया रास्ता बना रहे होते हैं। आप अपने दिमाग को एक नई आदत सिखा रहे होते हैं। आप उसे बता रहे होते हैं, अब हम इस पर फोकस करते हैं। ये हमारी नई रियलिटी है। प्रैक्टिस के साथ आपका दिमाग पुरानी लिमिटिंग बिलीफ की बजाय अपने आप एम्पावरिंग बिलीफ पर जाएगा। A new belief is like a seed. It needs love and support to grow. The best sunlight for this seed is the feeling of love and acceptance. Connect your new image with positive emotions. Recall a time when you felt truly loved and supported. Maybe a hug from your mother, cheers from friends, or the affection of a pet. Bring that warm feeling into your body and link it to your new image. Let the feeling of love become the fuel for your new belief. Connect your image of success with the love in your life. This makes your belief powerful. Now, it's not just a thought, it's a deep feeling. This is a daily practice. Remind yourself of your new story every day. Feel the love and support around you. When an old thought returns, immediately replace it with your new one. Be patient with yourself. Building a new mental home takes time. Every practice is a brick. You have the power to change your life. Choose a limiting belief, follow these steps, and create a new vision with love. Practice until it becomes a natural part of your thinking. You are worthy of your dreams. Believe in yourself.
Now it's your turn. Try this technique and share your story. Your journey could inspire someone else. If this resonates with you and you want to rise above your invisible limitations, reach out to Vijaya.